এই মুহূর্তের বিগ ব্রেকিং নিউজ। এলাকার শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমার কলইপাড়া এলাকার পথ অবরোধে সামিল জনজাতি এলাকাবাসীরা। তাছাড়া তাদের বক্তব্য, শুক্রবার রাতের অন্ধকারে 14টি ঘর কে বা কারা ভেঙে জনজাতিদের নাম বদনাম করেছে, তার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে রবিবারের এই পথ অবরোধ। ফের একবার বলছি, এই মুহূর্তের ব্রেকিং আপডেট। এলাকার শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমার কলইপাড়া এলাকায় পথ অবরোধে সামিল জনজাতি এলাকাবাসীরা। তাছাড়া তাদের বক্তব্য, শুক্রবার রাতের অন্ধকারে 14টি ঘর কে বা কারা ভেঙে জনজাতিদের নাম বদনাম করেছে, তার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে রবিবারের এই পথ অবরোধ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর। সেই সাথে ঘটনার খবরকে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম। সেই সাথে অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলছে প্রশাসনের আধিকারিকরা। সেই সাথে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল সিআরপিএফ বাহিনী। বাইগন গাছ কাটতে ফলাইছে কায় কোন জমরা লোকে আয়া ফলাই দিছে বাইগন গাছ কাটতে পড়ছে ধরা পড়ছে সুপারি গাছ কাটতে ফলাইছে কোন জমরা লোকে করছে স্বীকার করে এই আমরা বাঙালিরা করছি। আর কত চাই আর কত করতে চাই হেরা আমরার উপরে কি করতে চাই আমরা তো বালা হেলো বাবা আমরা এরকম আমরা চলি যে আমরা ঘরের এক ঘরের মানুষ ভাবে আমরা চলি, কিন্তু তারা আপনি জিজ্ঞাসা করেন স্যার এখানে যত লোক আছে সব দেখেন তোমরা সই গাছ খারাপ করে নি মানুষের এখানে কি ট্রাইবাল এখানে কলই আছে এখানে তোমরা সই গাছ খারাপ হচ্ছে তোমরা বেসন খাইনি না পাই না। একটা গড় ভালো আছে, যদি কালকে যে পরশু যদি বাংতো তোলে তো এখানে গড় আছে, এখানে কাঠ আছে প্রচুর, তার একটা গড় আবার টিন একটা সেটা হইল একটা সেটা তো কাঠও আছে টিনও ভালো আছে। আপনি দেখতে পারেন বিশ্বাস না আর এখন যদি খারাপ করলে তোমার টিন ভালো রাখবো এই কাঠগুলো 30-40 হাজারের কাঠ আছে, একটাও লড়া পড়ছে না। তবে আমরা বদনাম করছে কেন লাগি অত তোমরা বাহাদুরি দেখাইছে কেন লাগি আমার এই যদি লাগলে তো আমরা ওই যে কাঠটা যদি যাইলে তো 10-20 হাজার 60-70 হাজার টাকা পাই যায় না। আর শুধু না আমরা কোনো বিপক্ষ না, এই জায়গায় টেম বসার জন্য আমরা কোনো বিপক্ষ না চাই। আমরা পারলে তো বড় কেন্দ্র আমরা তো ব্যবসা করেন যায়, দোকানদারের জীবন যায়, যদি ভালো বড় বড় কেন্দ্র তো বড় ভালো। আমরা কিছু না ইডি কোনো বিপক্ষ না, আমরা কোনো বিপক্ষ ইডি বিপক্ষ না। ऐसा काम किया राइट। यहाँ देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, आपकी बात भी मैंने सुनी, तो मुझे ऐसा लगता है कि बंगाली लोगों का जो घर टूटा उनका ग्रीवेंस उन्होंने बोला, वो ठीक है, बट किसी के ऊपर बिना एविडेंस के या ऐसे ही एलिगेशन करना वो सही है। ओके हाँ, तो जो ये इंसिडेंट हुआ, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज नॉट राइट। सबको हम लोग, वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री, वी शुड लिव वेरी पीसफुली विथ ईच अदर एंड सी वी आर बॉर्न अल्टीमेटली द सोल इज वन। हर एक इंसान में वही एक परमात्मा बसता है, राइट? मानता है ना? हमारे में जो, जैसे आप देखते हो एक रूम के अंदर फैन अलग है, ट्यूबलाइट अलग है, बल्ब अलग है, बट करंट तो एक ही है ना। तो उस करंट को आपको मानना चाहिए और हम सभी को साथ में अच्छे से रहना है। हाँ, यही तो चल रहा था। कोई 1-2 लोग अपनी जो अज्ञानता है उसके से कमेंट करता है, उससे हमें भी भड़कना नहीं चाहिए। किसी का एक बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून है, लॉ है, रूल है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो कानून उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे और कोर्ट में प्रूव होता है। हम भी, पुलिस भी जज नहीं है इसका, हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, हम कोर्ट को सबमिट करते हैं, हमारा काम ये सही है। तो अभी आपके ऊपर कोई ऐसा उंगली उठाने से, मुझे कोई पागल बोलने से मैं तो पागल नहीं होंगी ना, वो तो उसकी अज्ञानता है कि वो ऐसा बोल रहा है। तो हम लोगों को एग्रेशन में नहीं आना है। बट मैं एक सिंपल बात बोल रही हूँ, कोई हमको बुरा बोलने से हम बुरा नहीं होता है, हमारा जो कर्म है, हमारा जो काम से हम अच्छा बुरा होता है, राइट? तो आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे
ट्राइबल्स एक भोला प्रजाति का हमारा जो एक ट्राइबल को नेहरू ने बोला है कि ट्राइबल पंचशील उन्होंने दिया। नेहरू ने क्या बोला कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, उनका कल्चर को प्रिजर्व करना है। भारत सरकार भी ये मानता है कि हम उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, हर एक कल्चर को हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके ही हम लोग अच्छे से जीवन जी सकते हैं। वरना जैसे गांधी जी ने बोला, अगर आई फॉर आई, इसने मेरे आँख को हर्ट किया, मैं इसका आँख तोड़ूंगा, तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। बड़ा और सबसे पहले जब भी कोई रॉयट होता है तो औरतों के ऊपर ही आता है, औरतों के ऊपर रेप किया जाता है, औरतों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो हमको बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, समझदारी से ये चीज़ को सॉल्व करना है। ओके मैम, लेकिन ये भी सही है, आपका बात बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम यहाँ की एक ही डिमांड होगा यहाँ पे कि कैसे बोला गया कि ट्राइबल लोगों मैडम, ने वो ही लोग किया है। किसी के बोलने से हम नहीं, कोई मुझे कुछ भी बोले तो आई विल थिंक कि उसकी सोच ऐसी है, उसकी गलत सोच की वजह से हम गलत नहीं हो जाते। ओके, आपको ये तो पहले ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। Yes, ma'am. किसी के बोलने से आप टीचर हैं, आप ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती है, देश का भविष्य बनाती हैं आप, तो आप ये समझिए ना कि किसी के कुछ बोलने से हम नहीं होते हैं। नहीं होते। हाँ, और उनको अब जब आपका घर टूट जाता है, सपोज किसी का घर टूट गया, तो उनको गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है या जो भी है, वो बड़ास निकालने के लिए वो किसी को तुमने किया, प्रशासन ने हमको हेल्प नहीं किया, हमारे ऊपर भी बोल देंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर कुछ उनके साथ अन्याय हुआ है उसमें भी कानून देखेंगे, अगर आपके साथ भी कुछ गलत होता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक सिस्टम है, एक न्याय व्यवस्था है, एक कानून है, उसका पालन हमें एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें वो फॉलो करना चाहिए मैडम। पर्सनली नहीं लेना है। पर्सनल नहीं लेना है। लेकिन ये तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज डेमोक्रेटिक वॉइस त्रिपुरा।